اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تؤثر وابتمم بالخیر. پاور آف توبہ اینڈ استغفار. استغفار کے بارے میں بھی الحمدللہ سبھی جانتے ہوں گے اور توبہ کے بارے میں بھی سبھی جانتے ہوں گے، لیکن ہمیں کہیں نہ کہیں یہ جو ہے ایک کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے کہ دونوں ہی معافی مانگنا ہے، دونوں ہی کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بخشش طلب کرنے کو کہتے ہیں، لیکن دونوں چیزوں کی جو صورتیں ہیں لائک کنڈیشنز جو ہیں وہ الگ ہوتی ہیں، اور ایک جو ہے کسی ایک پرٹیکولر کنڈیشن یا پھر سچویشن میں کیا جاتا ہے، اور ایک جو ہے مستقل کرنے والی کیا ہے عبادت ہے. تو اسی کے بارے میں آج جانیں گے، اس کا امپورٹنس کیا ہے قرآن میں اور حدیث میں وہ جانیں گے، اور استغفار کے فائدے کیا ہیں اور توبہ کے فائدے کیا ہیں. تو اگر ہم سب مسلم ہیں الحمدللہ، تو ہم سب کو یہ چیز جو ہے پتہ ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحمان اور رحیم ہے. تو ہم اگر کوئی بھی غلطی کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے اور وہی غفور الرحیم ہے الحمدللہ. تو اگر جیسے کہ ہم سب بہنیں جو ہیں یہاں مومن ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم سب اس چیز پر جو ہے یقین کرتے ہیں الحمدللہ. شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر جو ہے ایک سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 28، اس کا ترجمہ پڑھنا چاہتی ہوں. آ، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. تخفیف کا مطلب ہوتا ہے تم سے ہلکا کر دے، آپ کے جو برڈن ہے وہ لائٹ کر دے. کسی بھی چیز کے پیچھے جو ہے جیسے کیا ہوتا ہے، اب انسان گناہ بھی کرتا ہے نا بہت زیادہ، تو جب گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل ہیوی ہو جاتا ہے. کہتے نہیں ہے کہ بہت زیادہ غلط کام کیے ہیں تو دل میں بھاری پن ہے، یہ سب کچھ ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا، انسان ان سب چیزوں کو نہیں جھیل سکتا ہے، اور اگر کوئی چاہتا ہے آگے بڑھنا تو اس کے لیے کیا ہے، وہ توبہ اور استغفار کرے. اور توبہ اور استغفار کیا ہے؟ ایک طریقہ ہے، کیا ہے، جو کہ ہمارے اندر ایول یا پھر جو شیطانی چیزیں ایکیومولیٹ ہو گئی ہیں، جو جم گئی ہیں، جو کہ ہماری روح کو کیا کرتی ہیں، اس کو تباہ کر سکتی ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے، رحمت سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کر کے ہم اس چیز کو کیا کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بخش سکتا ہے الحمدللہ. تو اسٹارٹ کریں گے توبہ سے. توبہ کیا ہے؟ توبہ توبہ از ریپینٹنس ٹو اللہ آفٹر کمیٹنگ اے سن، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کرنا یا پھر اس سے معافی مانگنا آفٹر کمیٹنگ اے سن، کوئی گناہ کرنے کے بعد. کس چیز کے بنا پر؟ چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی رحمت اور اس کی مغفرت طلب کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ توبہ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے کوئی گناہ کیا، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے، آمین. اگر کسی نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے انسان کو ریگریٹ فیل ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے جسے کہتے ہیں، اور پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. کیونکہ ایز اے مسلم ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، غفور الرحیم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. تو اگر ہم نے گناہ کیا اس پرٹیکولر سن کے لیے، اس ایک گناہ کے لیے جس کا ہمیں بہت زیادہ ریگریٹ ہے، جس کا ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے، ہم کیا کریں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ گناہ ہو بہنوں. کیونکہ انسان سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اور کہا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحمت جو ہے طلب کرے الحمدللہ. اب ہمیں توبہ کس طریقے سے کرنی ہے؟ توبہ کرنے کی جو ہے بہنوں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. توبہ کرنے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہیں؟ کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، ریپینٹنگ ٹو اللہ دا آل مائٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے معافی مانگیں گے.
उस जो पर्टिकुलर सिन है, जो जो गुनाह हुआ है, उस चीज़ की नदामत दिल में होना ज़रूरी है। रिग्रेट होना उस चीज़ का ज़रूरी है, उस दिन उ उस चीज़ के लिए। जो गलती आपने की है, उसकी नदामत, उसका रिग्रेट, उसका अफ़सोस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या होता है कि गुनाह किया, अल्लाह मेरी तौबा, फिर गुनाह किया, अल्लाह मेरी तौबा। लेकिन उस चीज़ की जो है संजीदगी नहीं आ पाती है दिलों में, ठीक है? और उस गुनाह को छोड़ना है, जल्द से जल्द। अबैंडन द सिन, उसको तर्क कर दें, है ना? क्या करना है? गुनाह को तर्क कर देना है। और इंटेंडिंग द, वापस जो है उस गुनाह की तरफ लौटना नहीं है। ये मेक श्योर करें कि उस गुनाह की तरफ मैंने वापस लौटना नहीं है। ये कंडीशंस होती हैं तौबा की। और अगर हम में से कोई भी बहन ऐसी है, या हम में से कोई भी सिस्टर ऐसी है जो कि तौबा जो है किस तरीके से करती हैं कि कोई गुनाह किया और फिर तौबा कर लिया और फिर वापस उस तरफ लौट गई, तो वो दुआ जो है, वो तौबा जो है वैलिड नहीं मानी जाती, क्योंकि ये कंडीशंस है तौबा की कि अगर आपने तौबा कर ली तो दोबारा उस गुनाह की तरफ लौटना नहीं है बहनों। दोबारा उस चीज की तरफ वो करना भी नहीं है। आपने तौबा की, गलती का एहसास कब होता है? जब आप जो है दोबारा वो वाली गलती ना दोहराएं। तभी तो होता है ना। हमने कोई गुनाह कर दिया और फिर उसके बाद हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांग रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ कर दिया हमको, और फिर वापस से वही गुनाह कर रहे हैं, तो इसका मतलब नदामत और अफसोस तो था ही नहीं हमारे दिल में। तो ये 4 कंडीशंस हैं तौबा मांगने की, किस तरीके से जो है कोई इंसान जो है तौबा मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। 4 चीजें जरूर होनी चाहिए इंसान में। अब देखिए इम्पोर्टेंस क्या है तौबा की, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में एक चैप्टर, एक सूरा ही अल तौबा के नाम से जो है वो की है। अगर तौबा की कोई अहमियत नहीं होती तो इसके नाम का कोई चैप्टर नहीं होता बहनों। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरा का पूरा चैप्टर दिया है कुरान में इसके लिए, तौबा तौबा के नाम का, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हम सूरह अल तहरीम की आयत नंबर 8 पढ़ेंगे। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमानदारों को जो उनके साथ है रुस्वा ना करेगा, उनका नूर उनके सामने और उनके दाएं दौड़ रहा होगा। ये दुआएं करते होंगे, ए हमारे रब, हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तू हर चीज पर कादिर है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए ईमान वालों, यानी कि जो ईमान वाले हैं, जो मुत्तकी हैं, जो मोमिन हैं, वो क्या करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सच्ची और खालिस तौबा करते हैं। यानी कि वो जो है उनके अंदर कोई भी छल कपट नहीं होता कि अभी काम निकल जाए तो मैं थोड़ी सी तौबा कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी तौबा कर लेती हूँ, काम निकालने के लिए नहीं। सच्ची और खालिस तौबा करनी होती है। और जब सच्ची और खालिस तौबा इंसान कर लेता है, रिग्रेट करता है, नदामत जो है उसके अंदर होती है, तो वो क्या करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह दूर कर देता है। और उसके बाद फरमाया कि तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज्यादा गफूरुर रहीम है। और अगर तौबा सच्ची हो और जो है सिंसियर हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा ज़रूर जो है कबूल फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हम सूरह बकरा की आयत नंबर 222 पढ़ेंगे। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। ये उस आयत का लास्ट वाला पार्ट है बहनों, आयत काफी लंबी है ये। बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। इसका मतलब जो लोग तौबा करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे मोहब्बत भी करता है। तो जो तौबा करेगा, जो लौटेगा अपने रब की तरफ कोई गलती करके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत भी वो पाएगा। तो इसका मतलब तौबा कोई छोटा अमल नहीं बहनों, है ना? तौबा जरूर करनी है हम लोगों को। तौबा कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहब्बत किससे करते हैं? जिसमें कोई ना कोई बात होती है। हम्म अगर कोई इंसान सेल्फ रियलाइजेशन कर ले रहा है और सेल्फ रियलाइजेशन उसको हो जा रहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे मोहब्बत करते हैं। पाक रहने वालों से किस चीज से? गंदगी। अब वो चाहे तो
दिमागी गंदगी हो सकती है, जिस्मानी गंदगी हो सकती है ना? सोच भी तो होती है ना इंसान की, कभी-कभी इविल थॉट्स आते हैं, कभी-कभी शैतानी जो है काम करने का मन करता है। लेकिन जो है जब दिमाग में भी किसी मोमिन के ऐसे थॉट्स आते हैं तो वो इस्तिग़फ़ार या फिर तौबा करता है, अल्लाह मेरी तौबा, या फिर अस्तगफिरुल्लाह बोलता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी की तलब करता है और उसकी मग़फ़िरत की तलब करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे बंदों को क्या करते हैं, मोहब्बत करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दूँगी मैं, अगर मान लीजिए आप किसी एक रूम में हैं और किसी बहन का आपके पास फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है? आपको लगा कि उसके फ़ोन में जितनी भी चीज़ें हैं या तो आप देख लें क्योंकि आप पासवर्ड जानते हैं, या फिर आपको ये लगता है कि आप क्या करें कि उसकी जो है चैट्स पढ़ सकते हैं कि कहीं मेरी कोई बुराई तो नहीं इसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने दिमाग में इस आए हुए थॉट को निकाला और कहा कि अल्लाह मेरी तौबा, मुझे नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है देख रहा है, हर जगह जो है वो मौजूद है। अगर इस तरीके से आपने अपने थॉट्स को पाक कर लिया और क्या किया कि तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस शख्स से क्या करेगा, मोहब्बत करेगा, और आपने वो काम करने से पहले ही तौबा कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूरह निसा की आयत नंबर 17 में पढ़ेंगे, अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो बेवजह नादानी जो ब बेवजह नादानी कोई बुराई कर गुज़रें, फिर जल्द उससे बाज़ आ जाएँ और तौबा करें तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल करता है। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और हिकमत वाला है। अब देखिए उन्हीं लोगों की तौबा कबूल होती है जो बेवजह नादानी या फिर कोई बुराई कर गुज़रते हैं। यानी कि यहाँ पर ऐसा है कि कोई इंसान जो होता है, देखिए जब इंसान कोई गलत काम कर रहा होता है ना तो उसका ये नहीं उसके दिमाग में ये नहीं होता है कि इसका मुझे खसारा मिलेगा। वो क्या कर रहा होता है, उस टाइम के प्लेजर के लिए, उस टाइम के थोड़े से सुकून के लिए वो वाली चीज कर देता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी दुआ कबूल करते हैं, जो जल्दबाज आ जाए। अल्लाह क्या कह रहे हैं, कर गुजरे फिर जल्द उससे बाज आ जाए। ठीक है, अगर गुनाह हो गया, अगर कोई हमने गुनाह कर दिया, बड़े से बड़ा गुनाह बहनों, हाँ, बड़े से बड़ा गुनाह कर दिया, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं, जल्द अगर उस चीज से बाज आ जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा कबूल कर लेता है। और तौबा की चार क्या चीजें हैं, मान लीजिए किसी ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया तो उसे क्या करना पड़ेगा, चार चीजें। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करनी पड़ेगी, यानी कि उससे माफी मगफिरत मांगनी पड़ेगी। उस पर्टिकुलर सिन, उस गुनाह के लिए क्या होना है, उसके अंदर अफ़सोस होना चाहिए कि मैंने क्यों किया और मुझे नहीं करना था। फिर जो है उस गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद उस गुनाह तक वापस लौटने की जो है इंसान को नियत भी करनी होगी कि मैं वापस जो है नहीं लौटूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6952 पढ़ते हैं। अबू साले ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, मेरे बारे में मेरे बंदे का जो गुमान हो, मैं उसके साथ मुताबिक होता हूँ, और वो मुझे जहाँ भी याद करे मैं उसके पास होता हूँ। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला अपने अपने बंदे की तौबा पर तुम में से ऐसे आदमी की निस्बत भी ज्यादा खुश होता है जिसे चटील बयाबान में अपनी गुमशुदा सवारी सामान समेत वापस मिल जाती है। मेरा जो बंदा एक बालिश मेरी तरफ मेरे करीब आता है, मैं एक हाथ उसके करीब आ जाता हूँ, और जो एक हाथ मेरे करीब होता है मैं दोनों हाथों की पूरी लंबाई के बराबर उसके करीब हो जाता हूँ, और जो जो चलता हुआ मेरी तरफ आता है मैं दौड़ता हुआ उसके पास आता हूँ। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि मैं अपने बंदों के लिए ऐसा हूँ जैसा वो मेरे बारे में सोचते हैं। आपने कोई भी गुनाह किया है बहनों, हाँ, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए क्या चीज़ है कि हमें हमें बहुत ज़्यादा अफ़सोस है और हो गया मुझसे गुनाह। तो मैं अब ये सोचूँगी कि अल्लाह तो मुझे माफ़ ही नहीं करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसी के मुताबिक मेरे साथ होंगे। लेकिन अगर मैंने सोच लिया कि मेरा रब जो है
अगर मैंने सोच लिया कि जो मेरा रब है वो कैसा है, वो मुझे मुआफ़ करेगा। मैंने पहले ही जब स्टार्टिंग में ये बात स्टार्ट की, तो मैंने जो आयत पढ़ी वो यही है कि तुम्हारा रब चाहता है कि तुम्हारे लिए चीज़ों को हल्का कर दे, क्योंकि इंसान जो है कमज़ोर है। अब सोचिए, उसकी सोच ही इतनी कमज़ोर है कि वो सोचता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ़ ही नहीं करेंगे। जबकि एक मुसलमान का क्या होना चाहिए अक़ीदा, कि अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूरुर रहीम है, वो रहमान है और वो रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। वो तौबा को क्या है, कबूल करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर मैंने ये सोचा कि मेरा रब जो है ज़रूर जो है मेरी तौबा कबूल करेगा, तो वो करेगा। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या होता है, अल्लाह की कसम, देखिए यहाँ पर कसम भी खाई, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा पर तुम में से ऐसे आदमी की निस्बत भी ज़्यादा खुश होता है, यानी कि किसी इंसान को बयाबान या फिर जो चटील मैदान है जहाँ पर कुछ नहीं है, चट्टानें हैं हाँ पूरी, उसको अगर अपने खोई हुई ऊँटनी मिल जाए, सवारी मिल जाए, उस सोचिए कि कोई पूरा साफ मैदान है और वहां पर उसको क्या मिले, उसकी ऊँटनी मिल जाए या उसकी जो सवारी थी उसके अंदर भरा हुआ सामान, अब उसमें चाहे सोना हो, चाहे उसका खाना हो, चाहे 3 दिन का पानी हो, उस इंसान को कितनी खुशी होगी ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है खुश होता है अगर कोई बंदा क्या करता है, तौबा करता है, किसी किसी गुनाह के बाद जो है कहाँ जाता है। देखिए, पहली चीज क्या है, गुनाह करना ही नहीं है बहनों, है ना, गुनाह से बचना है, अवॉइड। लेकिन ये उन लोगों के लिए है, ये ऐसे लोगों के लिए है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस हो जाते हैं, जिनको लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ ही नहीं करेंगे, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि मैं ऐसा हूँ अपने बंदे के लिए जैसा वो मेरे बारे में सोचता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह की कसम, अल्लाह अपने बंदे से बहुत खुश होता है। और वो कहता है कि अगर तुम एक बालिश के करीब आओगे तो मैं एक हाथ के करीब आता हूँ। तो सोचिए, जब गुनाह हुआ और खड़े हुए और नमाज पढ़ी और वुजू की, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने करीब आ गया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सोच रहे हैं कि मेरा बंदा जो है मुझसे तौबा करने आया है और वो इतना खुश है, वो आपसे मिलने आया है। आप चल कर वुजू करने गए, वो दौड़ कर आपके सामने आकर खड़ा हो गया बहनों। तो हमें क्या करना है कि हमें अगर कोई गुनाह हो जाए हमसे, तो हमें ये नियत रखनी है कि मेरा खुदा सब कुछ माफ करने वाला है और वो करता है। और मैं अगर दौड़ूंगी उसके पास, मैं अगर जाऊंगी कोई गुनाह करने के बाद उसके पास, तो क्या होगा, वो माफ करेगा मुझे। मैं अगर दौड़ूंगी तो वो बिजली की तेजी से मेरे पास आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबा करने वाले इंसान से खुश होते हैं। और कैसे खुश होते हैं, उस इंसान से भी ज्यादा खुश होते हैं जैसे कि किसी को जटील मैदान में उसकी सवारी मिल जाए, वो भी सारे सामान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब तौबा के लिए जो है बहनों एक नमाज है यहाँ पर, सलातुल तौबा उसको कहते हैं, लेकिन सलातुल तौबा हम अपनी जबान में बोलते हैं। मान लीजिए, जैसे कि मैंने अभी बोला कि तौबा किस तरीके से करें, है ना? तो इंसान ऑब्वियस सी बात है, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला की क्या करेगा, पहले वो इबादत करेगा, फिर रोते हैं। हम में से कई कई सारी बहनें हैं जो कि रोते हैं अपने उस पर जो है, वो 4 स्टेप याद करिए जो स्टार्टिंग की उसमें है। फिर उसके बाद जो है वो करिए, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी कर ली, आपने दिल में इख्तियार कर लिया कि हाँ, मुझे क्या करना है, अल्लाह से माफ़ी माँगनी है। अब उसके लिए रिग्रेट, है ना? अफ़सोस, अफ़सोस ज़ाहिर कहाँ करेंगे? क्या रूम में बैठे-बैठे और जो है फ़ोन चलाते-चलाते अफ़सोस ज़ाहिर होगा? नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदे से सबसे ज़्यादा करीब कब होते हैं? जब वो आसमान में आते हैं, है ना? और एक बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब कब होता है? जब वो सजदे की हालत में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम क्या करें बहनों, हम नमाज़ पढ़ लें, हमसे ज़ुबान से तौबा ना करें। हम क्या करेंगे? हम जाएँगे, अब एग्ज़ाम्पल लीजिए कि आपने कोई गलती कर दी, नहीं, आपने कोई गलती कर दी और अम्मा के पास गए, तो अम्मा अगर सबके सामने आपको डाँटने लगी और अम्मा से कह रहे हैं, अम्मा मैंने ये गलती कर दी, सबके सामने तो नहीं कहेंगे ना, करीब में जाके, बंद कमरे में जाके बोलेंगे कि अम्मा मैंने ये गलती कर दी, मुझसे ये गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वही है बस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आपको आपकी 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या करता है, आप अपने 70 माँओं से ज़्यादा
प्यार करता है वो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब हम जाएँगे, हम वुज़ू करेंगे, हम क्या करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुआफ़ी माँगेंगे। तो उसी की नमाज़ को क्या कहते हैं, सलातुल तौबा बोलते हैं। जैसे जैसे कि क़यामुल क्या हो गया, लैल हो गया, इसी तरीके से सलात का मतलब नमाज़, उल का मतलब की, और तौबा का मतलब तौबा। मुझे तौबा माँगने जाना है, तो मैं सलातुल तौबा पढ़ रही हूँ। सलातुल तौबा जैसी कोई पर्टिकुलर नमाज़ हदीस में नहीं है, कहीं नहीं है, लेकिन अगर हम ज़बान में इसको बोलें कि भई मैं तौबा के लिए 2 रकात नफ़िल पढ़ने जा रही हूँ, तो उसको सलातुल तौबा जो है हम बोल सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, वुज़ू करना होता है, सारे उसके साथ जो कि जितने भी वुज़ू के फ़राइज़ हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से 2 रकात नमाज़ की क्या है, नियत बाँधनी होती है, ठीक है? इंटेंशन करनी होती है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला से सलातुल तौबा में क्या करना होता है, हम क्या करेंगे, अल्लाह से मुआफ़ी माँगेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये प्रॉमिस करेंगे, हमारा ये वादा रहना चाहिए बहनों कि या अल्लाह मैं इसकी तरफ दोबारा कभी नहीं लौटूँगी, या मैं कभी नहीं लौटूँगा, कि अल्लाह बस मुझे आप माफ़ फ़रमा दीजिए। बस इस चीज़ के लिए माफ़ फ़रमा दीजिए, और यकीन जानो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इससे पहले वाली हदीस में फ़रमाया कि जैसा गुमान मेरा बंदा रखता है, वैसा ही मैं उसके लिए हूँ। उसी तरह से जो है मैं अपने बंदे के लिए हूँ, और अगर ये यकीन है ना बहनों कि वो माफ़ करेगा, तो वो ज़रूर माफ़ करेगा आपको। तो क्या करना है, नमाज़ पढ़नी है, और नमाज़ क्या है, सिर्फ़ 2 रकात नमाज़ पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से, और इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफ़ूरुर रहीम है, वो मुआफ़ करने वाला है बहनों। जो ये नमाज़ है, नमाज़ के बारे में इस जो है अबू दाऊद से आता है, जो कि नाम मैंने बताया कि सलातुल तौबा जैसी कोई नमाज़ नहीं है, लेकिन हाँ, नमाज़ पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा जो है की जा सकती है, उसके बारे में जो है हदीस में है। सुनन अबू दाऊद की ये रिवायत है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते थे कि मैं ऐसा शख्स था कि जब मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस सुनता, तो अल्लाह ताला मुझे उससे जो चाहता फ़ायदा इनायत फ़रमाता, और जब कोई और सहाबी हदीस बयान करता, तो मैं उससे कसम लेता था, और जब वो कसम उठाता, तो मैं उससे तस्दीक करता था। कहा, मुझसे हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हदीस बयान की, और उन्होंने सच कहा। उन्होंने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना, आप फरमा रहे थे, कोई बंदा ऐसा नहीं जो कोई गुनाह कर बैठे, फिर वज़ू करे अच्छी तरह, फिर खड़ा हो और 2 रकात पढ़े और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, मगर अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। सुभान अल्लाह! ये हदीस है, ये सही हदीस है बहनों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि कोई बंदा ऐसा नहीं जो कोई गुनाह कर बैठे, फिर वज़ू करे अच्छी तरह, फिर खड़ा हो और 2 रकातें पढ़े और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, मगर अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। अब सोचिए आपका रब कितना ज़्यादा मेहरबान है। इसीलिए वो जो इस फर्स्ट स्लाइड में जो है बहनों, जो जो आयत है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका बर्डन लाइट करना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे लिए चीज़ें क्या कर दे, हल्की कर दे, क्योंकि इंसान कैसा है, वीक पैदा हुआ है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर खड़े हुए, लेकिन उसमें इंटेंशन भी है ना? इंटेंशन भी है कि मेरा रब मुझे क्या करेगा, मुआफ़ फरमा देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ के सुनाई, जो कि आयत है आले इमरान की आयत नंबर 135। मुत्तकी वो लोग हैं जो अगर कभी कोई भी बेहयाई का काम करे, या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर बैठे, तो अल्लाह को याद कर अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह बख्श दे, और ये लोग जानते बूझते अपने किए पर नहीं अड़ते और ना इसरार करते हैं। सुभान अल्लाह। तो मुत्तकी कौन लोग हैं? देखिए, ये नहीं कहा मुत्तकी वो लोग हैं कि जिन्होंने क्या किया, जो कभी गुनाह ही नहीं करेगा। मुत्तकी किन लोगों को कहा गया? वो लोग हैं जो अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर ले, या अपनी जानों पर कोई जुल्म कर ले, या उनसे कोई गुनाह हो जाए बहनों, तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। तो हमें मुत्तकी बनना है। तो हमसे अगर कोई गुनाह हो गया, तो हमें शैतान को बिल्कुल भी अपने कान में नहीं फुसफुसाने देना है कि तुम्हारा रब तो है ही नहीं माफ करने वाला।
हाँ, जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी चीज़ें हल्की करना चाहता हूँ, तुम्हारा बर्डन लाइट करना चाहता हूँ और मैं मुआफ़ करने वाला हूँ और कैसा हूँ कि मेरा बंदा एक बालिश के बराबर आए तो मैं एक हाथ के बराबर आता हूँ, वो एक हाथ के बराबर आए तो मैं दोनों हाथ की लंबाई के बराबर आता हूँ, वो चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ, सुभान अल्लाह। तो हमें यहाँ शैतान का बहुत बड़ा रोल होता है बहनों। आपने कोई गलती कर दी, कोई बेहयाई का काम कर दिया या फिर अपनी जान पर कोई भी ज़ुल्म किया, अपनी जान पर ज़ुल्म करना कैसे हुआ? कि जो फ़र्ज़ है वो नहीं पढ़े हमने, है ना? अपनी जान पर ज़ुल्म ही तो करना है कि जो जो चीज़ फ़र्ज़ है, जो मैंडेटरी थी मेरे लिए, जो रूल्स थे वो फ़ॉलो नहीं किए तो ऑब्वियसली उसका ख़सारा भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि मुत्तकी वो लोग हैं जो अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर भी लें, अपनी जानों पर ज़ुल्म कर लें तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं। तो हम सबको क्या करना है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखना है कि वो बेशक मुआफ़ करने वाला है। वो तौबा कबूल करने वाला है बहनों। और क्या करना है कि अगर कोई गलती हो जाए तो क्या करना है, नमाज पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांग लेनी है और यकीन क्या है कि मेरा रब तौबा कबूल करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से हाँ, तौबा की जो दुआ है वो क्या है, हाँ, जो कि हदीसों से साबित है। अबू दाऊद की रिवायत है ये, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कतु व जिल्लहु व अव्वलहु वल आखिरहु। इब्न सरह ने मज़ीद ये अल्फाज़ भी बयान किए, अलानियतहु व सिर्रहु। ए अल्लाह मेरे सभी गुनाह मुआफ़ फ़रमा दे, छोटे बड़े, पहले पिछले और जो ज़ाहिर या छिपे हुए हैं। तो सलातुल तौबा के बाद या फिर नमाज़ जब हमने पढ़ी किस चीज़ के लिए गुनाह, तो हम क्या करें, जब भी हम नमाज़ पढ़े उसमें सजदे में हम ये वाली दुआ करें क्योंकि ये सुन्नत से साबित है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ पढ़ा करते थे। देखिए इसका कितना अच्छा मीनिंग भी है बहनों। ए अल्लाह मेरे सभी गुनाह मुआफ़ फरमा दे, छोटे-बड़े, पहले-पिछले और जो ज़ाहिर हैं और छुपे हुए हैं। देखिए ज़ाहिर जो दुनिया के सामने, जो छिपे हुए जो सिर्फ़ आप जानते हैं, है ना? जो सिर्फ़ आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ को माफ़ करने वाला है। इसी तरह से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हमा कहते हैं कि बलाशुबा हम शुमार करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक मजलिस में 100 बार ये कलमा दोहराते थे, रब्बिग़फ़िरली व तूब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और रहमत के साथ मेरी तरफ रुजू फरमा, बलाशबा तू बहुत ज्यादा रुजू फरमाने वाला और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहा कि ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और रहमत के साथ मेरी तरफ रुजू फरमा, बलाशबा तू बहुत ज्यादा रुजू फरमाने वाला और रहम करने वाला है। अभी देखिए हम लोग तो रुजू कर ही रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ, लेकिन यहाँ क्या है कि जब मेरा रब, मैं तो तौबा के लिए जा रही हूँ अपने अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास मैं तौबा करने जा रही हूँ, लेकिन जब मेरा रब आए मेरे पास, जब मैं एक बारिश पढ़ रही हूँ, जब वो एक हाथ के बराबर मेरे पास आए, तो वो कैसे आए, रहमत के साथ मेरी तरफ आए, है ना? हम मुझे अज़ाब देने के उससे ना आए, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा कि मैं बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो मोहब्बत करता है उस इंसान से जो तौबा करने वाला होता है, जो क्या करे अपने गुनाहों की माफ़ी माँगने वाला होता है। तो क्या है, मेरी तरफ रुजू फरमा, बलाशुबा तू बहुत ज़्यादा रुजू फरमाने वाला और रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। और वो तो है, वो तो हर किसी पर क्या करता है, रहम करता है और तौबा जो है कबूल करता है, तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, जब आप ये दुआएँ पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इंशाअल्लाह आपको क्या होगी बहनों, रहमत मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि ये सभी हदीस क्या है, हदीसों से, सही हदीसों से साबित है। तो हमारा क्या होना चाहिए मोटिव, कि हम क्या करें कि अपनी ज़िंदगी में इन सभी दुआओं को क्या करें बहनों, शामिल कर लें।
है ना? इंशाअल्लाह। और ये जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सजदों में ये दुआ पढ़ा करते थे, है ना? सजदों में ये दुआ पढ़ा करते थे। सजदों के बीच की भी जो दुआ होती है, हाँ, वो भी इंशाअल्लाह आएगी जब इस्तिग़फ़ार के बारे पढ़ेंगे। सजदों में ये दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी कुल्लहु दिक्कतहु व जिल्लहु व अव्वलहु व आखिरहु अलानियतु व सिर्रहु। ए अल्लाह मेरे सभी गुनाह माफ़ फरमा दे, छोटे-बड़े, पहले, पिछले और जो ज़ाहिर या छुपे हुए हैं। देखिए छिपे हुए गुनाहों की भी इसके अंदर क्या है, माफ़ी माँग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, तौबा कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम, इस्तिग़फ़ार। तो एक बार पहले तौबा का थोड़ा-सा हम वो ले लेते हैं कि तौबा के बारे में हमने क्या जाना और तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या डिफ़रेंस है, फिर वो भी जानेंगे इंशाअल्लाह। तो तौबा क्या चीज़ है कि जब कोई गुनाह हो जाए और इंसान उस पर्टिकुलर गुनाह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू होकर माफ़ी माँगे, उसको क्या कहते हैं, तौबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से तौबा करने की कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी माँगे, उस गुनाह का अफ़सोस होना चाहिए दिल में और उस गुनाह को तर्क कर दे, छोड़ देना चाहिए तभी इमीडिएटली इंसान को, और अगली बार ये नियत हो कि ये जो है मैं इस चीज़ को फ्यूचर में नहीं दोहराऊँगा या दोहराऊँगी। इम्पोर्टेंस जो है तौबा की बताई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, जो इंसान सच्ची और खालिस तौबा करेगा तो मैं उसको क्या हूँ, जन्नतों में दाखिल कर दूँगा, सोचिए। और कहते हैं कि जो जन्नत है वो उन लोगों से भरी जाएगी जिन्होंने गुनाह के बाद क्या किया, तौबा कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने जो है क्या नहीं किया, गुनाह नहीं किया। जबकि कौन लोग जन्नत में जाएँगे, जिन्होंने तौबा कर ली, अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा कर ली। करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बह रही हों। देखो जन्नत का क्राइटेरिया भी आ गया इसके अंदर कि अगर आप तौबा करोगे, सच्ची तौबा करोगे, खालिस तौबा करोगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। इसी तरीके से बाकी हमने 2 आयत देखी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसकी, उन्हीं लोगों की को तौबा कबूल फरमाता है जो जल्द ही उस चीज़ से बाज़ आ जाए। बिल्कुल सही। यानी कि किस चीज़ से, किस चीज़ से बाज़ आ जाए, जो कि गुनाह था उस चीज़ से। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सही मुस्लिम की रिवायत हमने देखी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होता है उस इंसान से जो क्या करता है, तौबा करता है और उसके करीब आता है। एक बालिश की बजाय एक हाथ के करीब आता है। फिर हमने जो है अबू दाऊद की रिवायत से पढ़ा कि हमें क्या करना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो जो दुआ जो हम तौबा के लिए पढ़ रहे हैं, जो नमाज़ हम तौबा के लिए पढ़ रहे हैं, तो उसे हमने सलातुल तौबा बोल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुत्तकी लोग किनको कहा, वो मुत्तकी लोग उनको कहा जो कि अगर कभी भी कोई बेहयाई का काम कर ले, तो इनकी जानों पर या फिर ज़ुल्म कर ले, तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते हैं। कौन है मुत्तकी? कि उनसे जब कुछ काम हो जाए तो वो दूर नहीं जाएँगे बहनों, है ना? गुनाह कर लिया तो शैतान आकर क्या डालेगा दिमाग में, अरे अब तो गुनाह कर लिया है तो लेट इट बी, जाने दो। अब इतना गुनाह कर लिया तो थोड़ा और कर लो, अब तो आप गुनहगार हो गए, नहीं। हमें क्या करना है? हमें याद रखना है कि हमारा रब क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है क्या है? तव्वाबुर रहीम है, वो बहुत ज़्यादा तौबा करने वाला, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। फिर हमने 2 दुआएँ देखी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे और ये दुआएँ इंशाअल्लाह हम सब बहनें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, ताकि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत भी मिल जाए, हमें जन्नत भी मिल जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें पसंद भी करे और हम मुत्तकी भी हो जाएँ इंशाअल्लाह। अब इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार क्या होता है बहनों? कि इस्तिग़फ़ार कहाँ से, इस्तिग़फ़ार एक ऐसा वर्ड है जो कि अरेबिक से मिला है ना? अरबी का एक वर्ड है जिसका जो रूट वर्ड होता है गा, गैन, फे और रे होता है ना? गैन, फा, रा होता है इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है कि किसी चीज़ को कवर कर देना या फिर किसी चीज़ को इस तरीके से ढकना कि वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए। किसी चीज़ को किस तरीके से ढकना कि वो साफ हो जाए। तो देखिए, अब जो है इस्तिग़फ़ार और इसमें सिर्फ़ एक ही वो होता है, डिफ़रेंस होता है कि तौबा के लिए हमने क्या पढ़ा था कि तौबा जो है हम सिर्फ़ एक जो हमने गुनाह किया है उसके लिए तौबा करते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी इंसान से
जाने बेजाने जो है क्या होते हैं, वो हो जाते हैं। मुत्तकी मीन्स जो तकवा इख्तियार करे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जो जिसमें डर हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और जो क्या करे, जो गुनाह करने से बचता हो, मुत्तकी उस इंसान को बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का खौफ हो। तो इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी चीज़ है जो ढक देगी किस चीज़ को, आपकी सोल को क्लीन करने के लिए या फिर क्या करने के लिए। अगर अक्सर जो है सादा और ताकतवर लोग इस चीज़ को अस्तग़फ़िरुल्लाह भी बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक नाम है अल गफूर, जो कि 91 मर्तबा किसमें आया है, कुरान में आया है। 91 मर्तबा आया है बहनों, ठीक है? अल गफूर, अल गफूर का मतलब ये होता है, अब देखिए गफूर भी है और गफ्फार भी है। अल गफूर का मतलब ये है कि वो जो बख्शता है किसको, गुनाहों को, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। ठीक है, क्वालिटी की बात हो रही, चाहे वो कितने भी बड़े क्यों ना हो। और अल गफ्फार का मतलब वो जो बख्शता है गुनाहों को, चाहे वो कितने ही ज्यादा क्यों ना हो। तो अगर हम गफूर का और गफूर रहीम का और गफ्फार का अगर मीनिंग निकालें, यानी कि सब माफ करने वाला और हमेशा माफ करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से हमें क्या पता चला कि इस्तिग़फ़ार कहाँ से आया, अस्तग़फ़िरुल्लाह, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस नाम से आया। और 91 टाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में इस चीज़ को फरमाते हैं। क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला 91 मर्तबा कहते हैं कि मैं सब माफ करने वाला हूँ और हमेशा माफ करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, क्या ये ऐसी चीज़ है जो कि मतलब किसी इंसान के सामने अगर हम कोई गलती कर दें, तो एक बार गलती करने के बाद भी इंसान के अंदर ये क़ुव्वत नहीं होती कि वो माफ़ कर पाए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है ना? उसका तो कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। वो तो बेनियाज़ है, वो तो अहद है, वो क्या है कि वो गफ़ूर है, वो माफ़ करने वाला है। कितना भी बड़ा गुनाह हो और कितना ही ज़्यादा गुनाह क्यों ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या है, इस्तग़फ़ार एक ऐसा अमल है जो एक मुसलमान की ज़िंदगी में जो है लगातार किया जाना चाहिए ना, लगातार किया जाना चाहिए। और यही इस्तग़फ़ार और तौबा में क्या है, बुनियादी फ़र्क है बहनों। क्या है? तौबा, जब आपने कोई गुनाह कर दिया तो उस गुनाह की माफ़ी के लिए जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू हुए तो उसको क्या कहा, तौबा। और इस्तग़फ़ार जो है क्या है, मुसलसल किया जाने वाला, लगातार किया जाने वाला अमल है। ठीक है? यही जो है इन दोनों के बीच का फ़र्क है। इस्तग़फ़ार इबादत है और तौबा क्या है, एक ऐसी माफ़ी है कि आप जो है दोबारा नहीं लौटेंगे, और प्रॉमिस है, मुसलमान को इस्तग़फ़ार करना चाहिए। उसने क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी-कभी इंसान थे कि गुनाह किया हो या ना किया हो, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, मुसलमान जाने बगैर गुनाह करता है ना? हमें नहीं पता है हमने आज दिन भर में कितने गुनाह किए। उसने गुनाह किया और कभी अपने क्या हो गया, गुनाहों को भूल जाता है इंसान। इसलिए इस्तग़फ़ार को शैतान के खिलाफ मुसलमान का क्या है, इस्तग़फ़ार हथियार है। हाँ? और क्या समझा जाता है इस्तग़फ़ार को, शैतान के खिलाफ मुसलमान का हथियार समझा जाता है, जो इब्ने आदम को अपने कंधों पर जमा करने के लिए अपने गुनाहों को भूल कर जहन्नुम में ले जाने की कोशिश करता है। सोचिए, ये क्या कर रहा है कि कंधों के ऊपर क्या रह गए, हमारे गुनाह। इसीलिए पहली आयत क्या थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी जो है बर्डन लाइट करने चाहता है, तुम्हारे लिए चीज़ें हल्की करना चाहता है, क्योंकि इंसान जो है क्या है, बहुत ज़्यादा क्या हुआ है बहनों, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा हुआ है। तो अब देखिए, शैतान का क्या काम है कि वो शैतान के खिलाफ मुसलमान का हथियार समझा गया अस्तगफिरुल्लाह को, क्योंकि शैतान इब्ने आदम को अपने कंधों पर जमा करने के लिए अपने गुनाहों को भूल कर जहन्नुम में ले जाने की कोशिश करता है। इंसान भूल जाता है चीज़ें, हमें पता ही नहीं है आज हमने दिन भर में कितने सारे गुनाह किए, और अस्तगफिरुल्लाह के मुसलसल दरवाज़े खोल देता है, बरकत, बख्शिश और शैतान के वसवसों से बचाता है। अस्तगफिरुल्लाह क्या करता है कि बख्शिश के दरवाज़े खोल देता है, और वो जितना भी हमारे कंधों पर गुनाहों का बोझ था, जो हमें पता भी नहीं है बहनों। देखिए, तौबा है, हम जब तौबा कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमने ये गुनाह किया है, और हम खुद जाकर माफ़ी माँग ले रहे हैं। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं जो कि क्या है, हमें नहीं पता होता। हमें मालूम ही नहीं है आज हमने दिन में कितने गुनाह किए हैं। तो
क्या करता है, अस्तगफिरुल्लाह से क्या होता है, मुसलसल दरवाजे खुल जाते हैं बरकत के और बख्शिश के। और क्या होता है, शैतान के वसवसों से जो है ये बचाता है। अल्लाह से माफी मांगने का अमल है, इस्तगफार की बात हो रही है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफी मांगने का अमल है। आम तौर पर अस्तगफिरुल्लाह कहकर अल्लाह से माफ़ी माँगो। उसकी एक लंबी किस्म है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। मैं अपने रब से माफ़ी माँगता हूँ और मैं उससे तौबा करता हूँ। जिसका मतलब ये है, बेशक मैं अल्लाह रब्बी, रब्बी का मतलब होता है ना पालने वाला, अपने पालने वाले से बख्शिश चाहता हूँ और मैं उसकी तरफ तौबा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए दोनों ही माफ़ी माँगने का है, लेकिन तौबा में आपको पता होता है कि आपने क्या गुनाह किया है और आप तब जाते हो। लेकिन शैतान इस तरह से लगा है आपके पीछे कि वो भुला देता है दिन भर में क्या किया है, और उस चीज में आपको अच्छा फील कराएगा कि नहीं थोड़ी और नाफरमानी थोड़ी। लेकिन इस्तगफार एक ऐसा हथियार है जो बरकत और बख्शिश के दरवाजे खोल देगा, और आपके कंधों पर जो गुनाहों का बोझ है वो क्या करेगा, उतार देगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सैयदुल इस्तगफार के जो है हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि जो भी इंसान इसको जो है दिन में एक बार पढ़ता है, उसके जो है सभी गुनाह माफ हो जाते हैं। और इसी तरीके से सैयदुल इस्तगफार जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उस इंसान का दिल जो है खुश रहता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद से और उसके इबादत से। इसी तरीके से ये जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तोहफे अता करता है, रहमत के तोहफे। और क्या होता है, उसके जो है क्या होता है, दिल और दिमाग की सलामती यानी कि अमन और सुकून। जब वो कोई इंसान क्या करता है तो देखो इसमें सुकून भी है, गुनाह भी माफ हो रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत से खुश भी है। हाँ, फिर तीसरा क्या है, और अगर सैयदुल इस्तगफार जो है इंसान का पढ़े, जब उसने क्या किया है, तौबा कर ली है, और उसके बाद अगर वो रोज भी पढ़ रहा है, तो ये एक जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से प्रूफ है कि उसके जो है सभी गुनाह मुआफ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदुल इस्तगफार इसमें डाला नहीं है बहनों, इंशाल्लाह उस पीडीएफ जब शेयर करेंगे तो डाल देंगे। इस्तिग़फ़ार इन कुरान सूरह अन-निसा की आयत नंबर 110 है। और जो कोई बुराई या अपनी जान पर ज़ुल्म करे, फिर अल्लाह से बख्शिश चाहे, तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। सुभान अल्लाह! क्या है कोई ऐसा? कोई इंसान है ऐसा? अम्मा भी होती हैं, अगर गलती कर देते हैं ना तो अम्मा भी चाँटा लगा देती हैं बहनों, है ना? लेकिन मेरा रब क्या है कि कोई बुराई करे या फिर अपनी जान पर क्या करे? ज़ुल्म करे। हुँ? अपनी जान पर ज़ुल्म करना, अपनी जान पर ज़ुल्म करने का मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए कुछ चीज़ें फ़र्ज़ हैं, जैसे कि नमाज़ फ़र्ज़ है ना? और जो है चलिए नमाज़ की ही बात करते हैं, तो जब हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं, तो नमाज़ हमारी रूह के लिए है, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, अपनी रूह को कमज़ोर बना रही हूँ, तो अपनी रूह पर ही क्या कर रही हूँ, ज़ुल्म कर रही हूँ। क्योंकि मेरी रूह जो है क्या हो रही है, कमज़ोर हो रही है। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूह का सुकून रखा है उसके अंदर, और सुकून नहीं दे रही हूँ तो बेचैन हो रही हूँ, तो अपनी जान पर ज़ुल्म कर लिया, क्योंकि मैंने कोई बुराई की, ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी तो मैंने बुरा काम किया तो मेरी रूह को सुकून नहीं मिला। और उसके बाद भी जो है मैं नमाज़ ना पढ़ने के बाद जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बोलूँ कि अल्लाह मुझे सुकून दे दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं कल से नमाज़ या मैं अभी से नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, बख्शिश चाहे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हदीस देखते हैं क्या है इस्तिग़फ़ार के बारे में। हमसे हमसे अबुल यमान ने बयान किया, उन्होंने कहा, हमको शोएब ने खबर दी, उन्हें ज़हरी ने कहा कि मुझे अबू सुलम्ह ने बिन अब्दुल्ला और रहमान ने खबर दी, उन्होंने कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैं दिन में 70 मर्तबा से ज़्यादा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार और उससे तौबा करता हूँ। अब ये देखिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी बात बता रहे हैं कि 70 से ज़्यादा बार जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माफ़ी में गिरते गिरते थे वो। और
हम कहाँ हैं बहनों? हम जितने गुनाह करते हैं, हम क्या नहीं करते हैं। जो चीज़ मना है वो करते हैं, जो चीज़ दिमाग में है और पता है कि गुनाह है वो करते हैं और उसके बाद भी ज़रा-सी नदामत नहीं, ज़रा-सा रिग्रेट नहीं। और क्या हम दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार भी नहीं पढ़ सकते? क्या हम 70 बार से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ते थे। तो हम क्या करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, क्या कि दिन में कम से कम 100 बार। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं 70 मर्तबा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार और उससे तौबा करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो क्या गुनाह किए थे? उनके तो सारे गुनाह माफ़ थे। फिर भी उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते थे। और हम आजकल इतना ईगो, इतना ज़्यादा हमारे अंदर क्या सब चीज़ें आ गई हैं कि क्या करते हैं कि नहीं, सारे गुनाह जैसे बख्शे बख्शाए। गुनाह करते हैं तो कहते हैं, झूठ बोलते हैं तो कहते हैं कि आर्ट है ये। अरे वो कितने आसानी से झूठ बोल लेती है। उसका झूठ तो लगता ही नहीं है कि झूठ है। वाहवाही करते हैं उस चीज़ के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसे गुनाहों से बचाए कि हमें क्या करे, हमें जो अपने कंधों पर जो है बोझ बना के और शैतान हमको जहन्नुम में ले जाए। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको ऐसी चीज़ों से बचाए। तो क्या है, हदीस है ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मर्तबा से ज़्यादा जो है इस्तिग़फ़ार पढ़ा करते थे। तो हम भी इंशाअल्लाह आपसे क्या करेंगे कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करेंगे बहनों, इंशाअल्लाह। इसी तरीके से ये सुनन नसाई की है, इसका मैं बयान कर देती हूँ इंशाल्लाह। रसूल में के कहते हैं, एक सेकंड रुकिए। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि मैं एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था मस्जिद में, साथ और एक इंसान ने क्या किया, रुकू किया, उसके बाद जो है उसने तहज्जुद किया और उसके बाद जो है सजदा किया और सजदा करने के बाद उसने क्या किया, ये वाली दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका या अल्लाहु बि अन्नका हाँ अल वाहिदु अल अहदु समदु अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अन तग़फ़िरा ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अल्लाह तू, तेरे सिवाय बरहक माबूद कोई नहीं है, कोई है नहीं। यही तू ही तारीफ करने तू ही, तेरी ही तारीफ है। पैदा किया तूने जमीन और आसमान ही तूने पैदा किया है। और एहसान बहुत है, वह ज़मीन हमेशा वाले एहसान और जलाल व अज़मत है। वाला वाला लाने में, एक सेकंड मुझे थोड़ा पढ़ने दीजिए, मैंने लिखा था। तो जब उसने ये पढ़ा तो इसका तर्जुमा मैं अभी बताती हूँ। तो इन क्या हुआ कि तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इस इंसान ने जो है सारे गुनाह जो है इसके मुआफ़ हो गए। क्यों? क्योंकि उसने ये दुआ पढ़ी। और इसका जो है तर्जुमा, आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ फिर। दुआ से लफ्ज़ में अल्हम्दुलिल्लाह, नेक्स्ट दुआ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मग़फ़िरली वरहमनी वाफ़ीनी वहदीनी वरज़ुक़नी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये दुआ जो है 2 सजदों के बीच में, शायद मेरी बहनें कुछ अभी भी पढ़ती होंगी। ये 2 सजदों के बीच में पढ़ने वाली दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआ का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और इसका जो है पीडीएफ भी जो होगा तो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। इस दुआ का तर्जुमा बहनों, या तो मैं आपको पीडीएफ में ही सेंड कर दूँगी, मैंने लिखा था और वो इरेज़ हो गया यहाँ से। मैं शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह।
इसी तरह से सही मुस्लिम की जो है रिवायत है, इसमें अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि मुझे कोई ऐसी दुआ सिखाएं जो मैं अपनी नमाज में पढ़ सकूं। उसके बाद आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ाग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम पढ़ो। तेरे सिवा कोई गुनाहों को बख्शने वाला नहीं, तो मुझे मुआफ कर दे और मुझ पर रहम फरमा, तू बड़ा बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। तो ये भी क्या है, मगफिरत की दुआ है। ये सब हम लोग पढ़ते हैं नमाज में, तो ये मगफिरत की दुआ है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कुरान में, सूरह ताहा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आयत नंबर 82 में, और बेशक मैं बहुत बख्शने वाला हूँ उसे जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छा काम किया और फिर हिदायत पर रहा। यानी कि पहले तौबा की, अच्छा काम किया और फिर हिदायत पर रहा से क्या मतलब है कि एक बार जब तौबा कर ली तो उसके बाद फिर उस तरफ लौटना नहीं है, उस तरफ जाना नहीं है बहनों। फिर इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 49 में फरमाते हैं, खबर दो मेरे बंदों को कि बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला मेहरबान। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम लोगों के लिए कहा कि मेरे बंदों को बोल दो बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला मेहरबान। तो हम क्यों जाएं किसी और के पास? हमने कोई गलती की है तो हम क्यों ना जाएं अपने अल्लाह के पास, क्योंकि वो खुद बोल रहा है सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 49 में, खबर दो मेरे बंदों को बेशक मैं ही हूँ बख्शने वाला मेहरबान। इसी तरह से सूरह नहल की आयत नंबर 119 है, फिर बेशक तुम्हारा रब उनके लिए जो नादानी से बुराई कर बैठे फिर उसके बाद तौबा करें और सवर जाएं, बेशक तुम्हारा रब उसके बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहां भी जब तौबा का जिक्र हो रहा था तो वहां भी कहा कि मुत्तकी कौन लोग हैं, जिनसे बुराई हो गई या जिन्होंने क्या किया, गुनाह कर लिया, ठीक उसके बाद जो है हिदायत पर रहे और वापस जो है उस तरफ लौटे नहीं। यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र हो रहा है तो 119 में क्या फरमाते हैं सूरह अल नहल की, फिर बेशक तुम्हारा रब उनके लिए जो नादानी से बुराई कर बैठे फिर उसके बाद तौबा करें और सवर जाएं, बेशक तुम्हारा रब उसके बाद जरूर बख्शने वाला है। कि मतलब सवर जाओ, कभी भी कोई भी गलती हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा करो और क्या करो कि बस सवर जाओ, सुधर जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपके पास्ट से जज नहीं करता है, आप जो आज हैं उसी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज करते हैं। और इस चीज में बहनों देखो दो चीजें यहाँ पर और आती हैं कि जब आप क्या करते हैं, एक तो ये है कि आज से ही करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी कि प्रेजेंट से आप जो आज हैं उसी से जज किए जाएंगे। तो जब इंटेंशन भी होती है ना हमारी कि हम कल ठीक हो जाएंगे, परसों सुधर जाएंगे, तो उस चीज से भी जज नहीं किए जाओगे। और ना ही उस चीज से जज किए जाओगे जो इससे पहले करके आए हैं, जो पास्ट है, और ना ही फ्यूचर से जो आज है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि सुधरना है तो आज ही सुधर जाओ। चाहे वो कल की गलती से सुधरना हो, चाहे वो आने वाले कल में जो आप चाह रहे हैं सुधरना उस चीज के बारे में हो। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूरह अल इसरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुम्हारा रब खूब जानता है तुम्हारे दिलों में है, जो तुम्हारे दिलों में है, अगर तुम लायक हुए तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख्शने वाला है। अब देखिए इसका मतलब क्या है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि आप दिन भर अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ते जा रहे हैं और जो है आपने कोई गुनाह किया जाके तुरंत सलातुल तौबा पढ़ ली। हम्म उठे, नमाज़ पढ़ी, फिर कल से वही काम, फिर उठे, फिर पढ़ी, फिर कल से वही काम करना शुरू कर दिया। फिर तुम्हारा रब खूब जानता है कि तुम्हारे दिलों में क्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप जो है 100 बार जो है 70 मर्तबा से ज़्यादा जो है आप इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहेंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं जानता है, वो जानता है। और अगर तुम लायक हुए, ऑब्वियसली अगर आप डिज़र्व करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बख़्शिश और मग़फ़िरत, तो बेशक वो तौबा करने वालों को बख़्शने वाला है। तो इसका मतलब मज़ाक में नहीं लेनी है इस चीज़ को। तौबा जो है वो मज़ाक नहीं है बहनों, बिल्कुल सीरियस,
बिल्कुल, कैसा इंसान को एकदम जो है रियलाइज़ेशन उसका होना चाहिए, उसको उस चीज़ का रिग्रेट होना चाहिए कि मैंने क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था और या अल्लाह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जो है क्या करूँगी, मैं नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ नहीं दोहराऊँगी। तो अल्लाह ने कहा कि वो जानता है दिलों में क्या है, अगर आप दिल में सच में अफ़सोस कर रहे हैं, तो वो माफ़ करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम देखेंगे कि इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे क्या हैं? अब ये तो हमें पता चल गया कि इस्तिग़फ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ पढ़ते थे, तो हमें ये भी पता है कि हमें रोज़ पढ़ना है। तो रोज़ पढ़ने के भी फ़ायदे हैं। देखिए, एक तो यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने जो है मेहरबान है कि हमारे गुनाहों से माफ़ी ये दे रहा है, हाँ? अस्तग़फ़िरुल्लाह से क्या हो रहा है कि हमारे गुनाहों की माफ़ी हो रही है और उसके बावजूद भी क्या है, बेनिफिट्स हैं इसके। क्या बेनिफिट्स हैं? वो इंशाअल्लाह एक-एक, एक-एक करके पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर 9 ही डाले हैं इंशाअल्लाह, लेकिन और भी है बहनों, ठीक? टाइम नहीं था और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था। इस वजह से क्या हुआ, इसको कम कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है, कंपाइलेंस टू एंड फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स कमांड, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील और तकमील होती है। क्या होता है पहली चीज़ से कि हम सब देखिए यहाँ पर आए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील करने के लिए और उसकी तकमील यानी कि उसको जो है पूरा करने के लिए, है ना? उसको मुकम्मल करने के लिए हम यहाँ पर हैं। तो जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील होती है, पहली चीज़ ये। तो कैसे होती है? सूरह अल-मुज़म्मिल की आयत नंबर 20 में पढ़ रही हूँ, खुदा से माफ़ी माँगो, यकीनन अल्लाह हमेशा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। यानी कि यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कमांड दिया, क्या कहा कि अल्लाह से माफ़ी माँगो। तो यानी कि जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, तो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुक्म दिया, उसकी तामील कर रहे हैं। यानी कि पहला हमें क्या हुआ इस चीज़ का बेनिफिट कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म की तामील कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, मुकम्मल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो ये हो गया इसका, फिर उसके बाद क्या है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम गॉडली पनिशमेंट, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब जो है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो गुस्सा है, उससे क्या है, हिफाज़त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब देखिए ये सूरह अल अनफाल की आयत नंबर 33 में पढ़ रही हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों को अज़ाब नहीं देगा जब तक कि वो अल्लाह से कि बख्शिश तलब करते रहे। तो अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहेंगे, हाँ, वो क्या करते रहेंगे, माफ़ी माँगते रहेंगे, मग़फ़िरत की तलब करते रहेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या नहीं करेगा, आपको पनिश नहीं करेगा बहनों, और क्या नहीं होगा, अज़ाब नहीं आएगा आपके ऊपर, ठीक? ये मैंने सेकंड का डाला भी था यहाँ पर, और अल्लाह का काम नहीं कि उन्हें अज़ाब करे, जब तक कि ए महबूब तुम उनमें तशरीफ़ फरमा हो, और अल्लाह उन्हें अज़ाब करने वाला नहीं जब तक कि वो बख्शिश माँग रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो इंसान बख्शिश माँगता रहेगा, जो इंसान इस्तिग़फ़ार पढ़ता रहेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेंगे, उसको माफ़ करते रहेंगे। इसी तरीके से थर्ड अगर हम देखें, तो थर्ड क्या है, गॉड्स बाउंटीज एंड मर्सी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फजल और रहमत उस इंसान को नसीब होती है जो इस्तिग़फ़ार पढ़ता है। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12 पढ़ रही हूँ। तो मैंने कहा अपने रब से माफ़ी माँगो, बेशक वो बड़ा मुआफ़ फरमाने वाला है, तुम पर शर्राटे का मीना भेजेगा और माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे लिए बाग बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत बख्शने वाला मेहरबान है। वो क्या करेगा, अगर सूखा है तो वो बारिश, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत होती है ना बारिश। और तीसरा हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत को पाने के लिए हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। तो वो बारिश बरसाएगा, हमारी औलाद, है ना? और दौलत और बाग़ात को क्या करेगा, उसके अंदर इज़ाफ़ा करेगा बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 46 है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, तुम अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं माँगते ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो अगर हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, ये थर्ड था ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत चाहिए, हाँ, मर्सी चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, और क्या चाहिए हमको, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फ़ज़ल चाहिए बहनों। तो हम क्या करें, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इस्तिग़फ़ार करें। इसी तरीके से फोर्थ क्या है इसका, चौथा फ़ायदा क्या है, रिलीफ फ्रॉम वरी एंड स्ट्रेस, यानी कि परेशानी और तनाव से निजात। ये सुनन अबू दाऊद की और इब्न माजा की रिवायत में पढ़ रही हूँ। अगर कोई मुसलसल इस्तिग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए हर मुसीबत से निकलने का रास्ता
बना देते हैं, परेशानी से निजात का ज़रिया बना देते हैं, और अल्लाह उनके लिए ऐसी जगह से, जहाँ से उसने क्या क्या नहीं किया हो, गुमान भी ना किया हो, सोचा ना हो, क्या करता है, रास्ते बनाते हैं। सुभान अल्लाह। तो स्ट्रेस और वरी के लिए क्या हुआ बहनों, कि उसके लिए भी हमें क्या करना है, इस्तग़फ़ार करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से इसी तरीके से क्या है, इसके आगे अगर हम देखेंगे तो नंबर 5, नंबर 5 जो है, इसका बेनिफिट कौन-सा है? एक्सपेंशन इन प्रोविजन यानी कि रिज्क में इजाफा होना, यानी कि जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें इजाफा होना। हम इसके अंदर पढ़ेंगे सूरह हुद की आयत नंबर 3। अपने रब से बख्शिश मांगो और उसकी तरफ तौबा करो, ताकि वो तुम्हें बेहतरीन रिज्क अता फरमाए। देखिए, एक होता है बेहतर और एक होता है बेहतरीन बहनों। तो पाँचवा फ़ायदा क्या है, कि बेहतरीन रिज़्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फ़रमाता है, अगर कोई इंसान बख़्शिश तलब करता है और इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। इसी तरीके से क्या है, जो छठा इसका फ़ायदा है, लाइकनेस टू प्रोफेट एंड द पाइस, यानी कि अंबिया और मुत्तकियों से मुशाहबत, यानी कि उन्हीं की तरह जो है मुआफ़ी। देखिए, आदम और हव्वा, ये मैं पढ़ रही हूँ सूरह अल आराफ की आयत नंबर 23। आदम और हव्वा ने दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपने पर जुल्म किया। अगर तूने हम पर रहम ना किया, तो हम यकीनन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यानी कि जो प्रोफेट्स हैं और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने भी, अंबियाओं ने भी क्या किया है, और जो कैसे लोग हैं, अंबिया और मुत्तकियों ने भी क्या की है, मुआफी मांगी है। तो उनकी तरह भी जो है हमें बनना है, क्योंकि हमें अपने अमल में क्या करना है, इजाफा करना है। इस्तग़फ़ार से देखिए कितने फ़ायदे हैं। तो अंबियाओं ने भी माफ़ी माँगी, तो हम भी क्या करेंगे, माफ़ी माँगेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया, हमें वो करना है। तो लाइकली नेक्स्ट टू प्रोफेट्स और जो मुत्तकी लोग हैं, उनकी तरह बना। फिर अब जो है, जो 7th इसका फ़ायदा है, जो 7वाँ नंबर है, वो क्या है, कि फ़ॉरगिवनेस एंड पार्डन, यानी कि अफ़ू और दरगुज़र करना, है ना? अफ़ू का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना किसी भी चीज़ को। पार्डन का मतलब दरगुज़र, माफ़ी, कहते हैं ना, दरगुज़र कर लो आपस में, ठीक? तो आयत सूरह अन-निसा की आयत नंबर 110 पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जो कोई बुराई करता है, अपने आप पर ज़ुल्म करता है, लेकिन उसके बाद अल्लाह से मुआफ़ी माँगता है, तो अल्लाह को बहुत बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। यानी कि अगर आप गलती भी करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करता है, माफ़ कर देता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अफ़ू और दरगुज़र करता है चीज़ों को इस्तिग़फ़ार पढ़ने से। फिर उसके बाद 8वाँ इसका फ़ायदा क्या है? एंटाइटलमेंट्स टू गॉड्स अपलॉड एंड ग्लैड टाइडिंग्स, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ और बशारत का हकदार होना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ़ और बशारत का हकदार होना। अब देखिए, इब्न माजा की ये रिवायत है, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके आमाल नामे में इस्तग़फ़ार की ज़्यादती है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको खुशखबरी दे रहे हैं, जिनके आमाल नामे में इस्तग़फ़ार की ज़्यादती है, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कर रहे हैं, खुशखबरी सुना रहे हैं। अब सोचिए, नामे आमाल में इस्तग़फ़ार की ज़्यादती। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमें क्या करना है, अपने नामे अमाल में इस्तग़फ़ार को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है बहनों, बढ़ाना है। अब 9th क्या है इसका फ़ायदा, एंट्री टू पैराडाइस, यानी कि जन्नत में दाखिला। कभी ये सोचा, इस्तग़फ़ार से जन्नत में दाखिला? ये कुरान की आयत है, सूरह आले इमरान की 135 और 136। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ। जिन लोगों ने बेहयाई की या बुराई से अपने आप पर जुल्म किया है, उसके बाद खुदा को याद करते हैं और अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और खुदा के सिवा कोई गुनाह को माफ करने वाला नहीं, माफ नहीं कर सकता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई भी गुनाह को। और जानबूझकर जो कुछ उन्होंने किया है, पर उस पर कायम ना रहें। अब ये देखिए, ये कितनी
वैसी आयत है कि जानबूझकर भी जो किसी ने किया, कि जानबूझकर कोई गुनाह हो गया, लेकिन फिर उसके ऊपर कायम नहीं रहे, फिर बदल गए, फिर क्या कर लिया, तौबा कर ली। ऐसे लोगों के लिए अज्र उनके रब की तरफ से रब की तरफ से बख्शिशों क्या है, बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। ये अमल करने वालों के लिए कितना अच्छा अजर है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि जो जो लोग इस्तगफार करते हैं और जो क्या करते हैं, तो देखिए बहनों कितने ज्यादा फायदे हैं इस्तगफार के। क्या कभी आज तक हमने सोचा था कि इस्तगफार से ही हमें सारी चीजें मिल जाएंगी? अच्छा खाना भी, जन्नत भी, सारी चीजें तो इस्तगफार से मिल ही गई। एक एक करके फिर से बता देती हूँ कि पहला क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हुक्म की तामील। फिर दूसरा क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अज़ाब से हिफाज़त। तीसरा है परेशानी तीसरा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फ़ज़ल और रहमत हासिल होती है जो इंसान इस्तिग़फ़ार करता है उसको। फिर चौथा है परेशानी और तनाव से निजात मिलती है। फिर उसके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा होता है। सिक्स्थ है अंबिया और मुत्तकियों से मुशाहबत, यानी कि उनकी तरह बनना हो जाता है। फिर फिर क्या है नेक्स्ट, सेवेंथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अफ़ू और दरगुज़र उसको फरमा देता है। एट्थ क्या है, खुदा की तारीफ़ और बशारत का हकदार हो जाता है वो इंसान। और नाइन्थ, जन्नत में दाखिला उस इंसान को हासिल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको उन लोगों में से बनाए जो क्या करते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं। और इंशाअल्लाह हम अहद लेते हैं कि हम आज से कम 100 बार इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको तौबा करने वाला बनाए और हमें ऐसा बनाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा ही गुमान रखते हैं। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर्स।